Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, today's verse for our meditation is taken from the book of Isaiah 48 verse 17. हमारे ध्यान के लिए आज का पद्य यशायाह 48 पद्य 17 की पुस्तक से लिया I गया है। am the Lord thy God which teacheth thee to profit. मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे लाभ पहुँचाना सिखाता हूँ। We know that the Lord, the Holy One of Israel, who rescued his people from the Egyptian enslavement, हम जानते हैं कि प्रभु इस्राएल का पवित्र परमेश्वर जिसने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बचाया था, and he is the same Almighty God who graciously redeems us from the sinful past. और वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमें पापपूर्ण अतीत से अनुग्रह पूर्वक छुड़ाता है। And just as the Israelites came under the blood of the slain lamb, which was applied to their doorposts and side posts, और जिस तरह इसराइली मारे गए मेमने के खून के नीचे आए, जिसे उनके दरवाजों और चौखटों पर लगाया गया था, and when we believed in the efficacy of the precious blood of Lord Jesus Christ, we are redeemed from our sinful state. और जब हमने प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त की प्रभावकारिता पर विश्वास किया तो हम अपनी पापपूर्ण स्थिति से मुक्त हो गए। After saving us, he does not leave us to our own plight. हमें बचाने के बाद वह हमें हमारी दुर्दशा पर नहीं छोड़ता। He promises to teach us those things that would benefit us. वह हमें वे बातें सिखाने का वादा करता है जो हमारे लिए फायदेमंद होंगी। He promises to guide us in the way of truth. वह हमें सत्य के मार्ग पर मार्गदर्शन करने का वादा करता है। He wants to direct us through deep valleys of darkness by upholding us with his righteous right hand. वह हमें अपने धर्मी दाहिने हाथ से थामे रखकर अंधकार की गहरी घाटियों से होकर हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। So the Spirit of God who led the people of Israel out of Egypt इसलिए परमेश्वर की आत्मा जिसने इस्राएल के लोगों को मिस्र से बाहर निकाला and who divided the Red Sea before them, और उनके सामने लाल सागर को विभाजित किया, who led them through the desert, जो उन्हें रेगिस्तान में ले गया, who rained down manna from heaven, जिसने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, and the same God who divided the river Jordan so that they could enter into the promised land, और वही परमेश्वर जिसने यरदन नदी को विभाजित किया ताकि वे वादा किए गए देश में प्रवेश कर सकें। he is the same Holy Spirit who teaches and trains us in the way we should go. वही पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाता है और हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रशिक्षित करता है जिस पर हमें चलना He चाहिए। guards us, he guides us during our sojourn on the earth. वह हमारी रक्षा करता है, वह पृथ्वी पर हमारे प्रवास के दौरान हमारा मार्गदर्शन करता है। He guards us. God himself is our teacher also. परमेश्वर स्वयं हमारा शिक्षक भी है। He is all knowing and all wise and understands us better than we understand ourselves. वह सर्वज्ञ है और हमेशा हमें हमसे बेहतर समझता है। He can understand us more than we understand ourselves. वह हमें हमसे ज्यादा समझ सकता है। And through his instruction and guidance, अपने निर्देश और मार्गदर्शन के जरिए he keeps us from making decisions that destroy us. वह हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जो हमें बर्बाद If the कर दे। choice is given to us to take any decision, अगर हमें कोई भी निर्णय लेने का विकल्प दिया जाए we are prone to take wrong decisions because our knowledge is finite. तो हम गलत निर्णय लेने के लिए प्रवृत्त होंगे क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है। We don't know what will happen in the next moment. हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। Without his divine intervention, we will falter. ईश्वर के दिव्य हस्तक्षेप के बिना हम लड़खड़ा जाएंगे। The result will be very destructive. इसका परिणाम बहुत विनाशकारी होगा। Possible things also may turn as impossibilities if we use our wisdom. अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो संभव चीजें भी असंभव में बदल सकती हैं। God directs our way according to his plans and purposes for our lives. परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अपनी योजनाओं और उद्देश्यों के अनुसार हमारा मार्गदर्शन करता है। His thoughts are always higher than our thoughts. उसके विचार हमेशा हमारे विचारों से ऊंचे होते हैं। These inspired or spirit-inspired words of Isaiah were an encouragement to the people of Israel as we read the verse for our meditation today. यशायाह के ये प्रेरित या आत्मा से प्रेरित शब्द इज़राइल के लोगों के लिए एक प्रोत्साहन थे, जैसा कि हम आज अपने ध्यान के लिए इस पद को पढ़ते हैं। They were great encouragement to the Israelites. यह इस्राएलियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था। Actually, at the time of their affliction during their Babylonian captivity, दरअसल बेबीलोन की कैद के दौरान उनके कष्टों के समय these words encouraged them. इन शब्दों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। And in the same way, और इसी तरह the Holy Spirit also in this New Testament age says that he will gently lead us. पवित्र आत्मा भी इस नए नियम के युग में कहता है कि वह हमें धीरे से मार्गदर्शन करेगा। I will lead the body of Christ through the peaks and pitfalls of the worldly system. मैं मसीह के शरीर को सांसारिक व्यवस्था की चोटियों
और नुकसानों के माध्यम से ले जाऊंगा। It's the same Holy Spirit who convicted of our sinful state and enabled us to confess our condition, वही पवित्र आत्मा जिसने हमें हमारी पापपूर्ण स्थिति के बारे में बताया and He will sanctify our souls as the days pass by. और हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करने में सक्षम बनाया। He guides us along the path of duty, pointing out the road of righteousness. और वह दिन बीतने के साथ हमारी आत्माओं को पवित्र करेगा। वह हमें कर्तव्य के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है, धार्मिकता का मार्ग दिखाता है। Oh, He instructs us in the highway of holiness, वह हमें पवित्रता के राजमार्ग पर निर्देश देता है and He bears us up on eagle's wings through the times of exhaustion when we are exhausted. और जब हम थक जाते हैं तो वह हमें उकाब के पंखों पर उठाकर ले जाता है। He plants our feet on the way to heaven, वह हमारे पैरों को स्वर्ग के रास्ते पर ले जाता है। teaches us and guides us into all truth. वह हमें सिखाता है और सभी सत्यों में हमारा मार्गदर्शन करता है। Yes, by speaking us through the inspired holy scriptures. प्रेरित पवित्र शास्त्रों के माध्यम से हमसे बात करके He unveils the gracious character of God. वह परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण चरित्र को उजागर करता है। He teaches us to live a life that is pleasing to Him. वह हमें ऐसा जीवन जीना सिखाता है जो उसे प्रसन्न करता है। He directs us in the most beneficial way. वह हमें सबसे ज्यादा फायदेमंद तरीके से मार्गदर्शन करता है। For this, we must have a teachable spirit. इसके लिए हमारे अंदर सीखने की भावना होनी चाहिए। Today, many born again people became stagnant in their spiritual journey. आज कई पुनर्जन्म वाले लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में स्थिर हो गए हैं। They are not able to move forward. वे आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं। They are not willing to be guided by the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होने के लिए तैयार नहीं हैं। They neglect the voice of God वे ईश्वर की आवाज की उपेक्षा करते and हैं। the guidance of the Holy Spirit while they take decisions in their lives. वे अपने जीवन में निर्णय लेते समय परमेश्वर की आवाज और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की उपेक्षा करते हैं। We must have a teachable spirit. हमारे अंदर सीखने की भावना होनी चाहिए। Then the Lord can lead and guide us in the way of truth. अब तभी प्रभु हमें सत्य के मार्ग पर ले जा सकते हैं और हमारा मार्गदर्शन कर सकते You हैं। will get God's best in your life and need not settle for the next best. आपको अपने जीवन में ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ मिलेगा और आपको अगले सर्वश्रेष्ठ के लिए समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। Our own ways turns to be destructive. हमारे अपने तरीके विनाशकारी साबित होते हैं। Therefore, as a child of God, इसलिए परमेश्वर के बच्चे के रूप में in every decision you take, acknowledge His guidance. अपने हर निर्णय में उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करें। It is important that we must spend time listening to Him as He teaches us what is right. यह महत्वपूर्ण है कि हम उसे सुनने में समय बिताएं क्योंकि वह हमें सिखाता है कि क्या सही है। Sometimes the choices we make, not only they affect us, but also the people around us. कभी-कभी हम जो चुनाव करते हैं उसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं पड़ता बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। All of them not only make a definite impact upon our present and future, but also affect our family, friends and fellow workers and the people at the church, etc. ये सभी न सिर्फ हमारे वर्तमान और भविष्य पर एक निश्चित प्रभाव डालते हैं बल्कि हमारे परिवार, दोस्तों और साथी कर्मचारियों और चर्च के लोगों आदि पर भी असर डालते हैं। We are not on an island unto ourselves. हम अपने आप में एक द्वीप पर नहीं हैं। See, for example, उदाहरण के लिए in a family, अगर किसी परिवार if में the father want to be a drunkard, पिता शराबी बनना चाहता है the whole family will be affected. तो पूरा परिवार प्रभावित होगा। Not only that man will be spoiling his health and finances, न केवल वह व्यक्ति अपना स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति खराब कर रहा होगा but the whole family will be in trouble. बल्कि पूरा परिवार परेशानी में पड़ So जाएगा। his decision is affecting the whole family, the other people. इसीलिए उसके फैसले का असर पूरे परिवार अन्य लोगों पर पड़ रहा है। The innocent children will be suffering. मासूम बच्चे परेशान होंगे। Yeah, they will not have money to pay the school fees. उनके पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं There होंगे। won't be proper money to cook the food and children will be starving. खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे और बच्चे भूखे मरेंगे। Like that. इसी तरह As an elder or as a servant of God, sometimes the decisions we take that will destroy the assembly. एक बुजुर्ग या परमेश्वर के सेवक के रूप में कभी-कभी हमारे द्वारा लिए गए निर्णय मंडली को नष्ट कर देंगे। Many times many assemblies are spoiled. Yeah, God is the constructor. Many times our decisions will become the destructors. कई मंडलियों में हम इस विनाश को देखते हैं। परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है, हमारे निर्णय बहुत कमजोर हैं। Many times we will not talk to the Holy Spirit. कई बार हम पवित्र आत्मा से बात नहीं करेंगे। We will not be guided by the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित नहीं होंगे। We will take some wrong decision. हम कोई गलत निर्णय लेंगे। Instead of confessing and leaving that decision out of our egoism, let what may happen, I will stick to my decision that we will tell. अपने अहंकार में आकर उस निर्णय को स्वीकार करने और छोड़ने के बजाय जो भी हो
मैं अपने निर्णय पर अडिग रहूंगा, वह हम बताएंगे। In this year, don't be like that. इस साल ऐसा मत बनो। Therefore, you have to decide which way to go when it comes to raising your son or daughter, or your personal finances, or your business, or your family life, your ministry, or your relationships. इसीलिए आपको यह तय करना होगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है जब बात आपके बेटे या बेटी की परवरिश की हो, या आपके व्यक्तिगत वित्त की, या आपके व्यवसाय की, या आपके पारिवारिक जीवन की, आपकी सेवकाई की, या आपके रिश्तों की। Look unto the one that is Lord Jesus Christ who can see everything. उस एक की ओर देखें जो प्रभु यीशु मसीह है, जो सब कुछ देख सकता है। So before I close, इसीलिए समापन से पहले let me mention at least 4 practical steps in order to be able to hear God's leading. मैं कम से कम 4 व्यवहारिक कदमों का उल्लेख करना चाहूंगा ताकि आप परमेश्वर की अगुवाई सुन सकें। Number 1, पहला, don't head into any day without praying for His guidance. किसी भी दिन की शुरुआत बिना उसके मार्गदर्शन के प्रार्थना किए न करें। Don't start any day. किसी भी दिन की शुरुआत न करें। Secondly, दूसरा, read Bible with a seeking heart, not as a routine tradition. बाइबल को एक खोजी हृदय से पढ़ें, न कि एक नियमित परंपरा के रूप में। Thirdly, तीसरा, incline your ear to His still small voice while meditating. ध्यान करते समय अपने कान उसकी शांत आवाज पर लगाएं, Because when you read the word of God, God will speak to you. क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। And fourthly, और चौथा, when God speaks, always obey. जब परमेश्वर बोले तो हमेशा आज्ञा का पालन करें। So may God help you and teach you things for your profit. ईश्वर आपकी सहायता करें और आपको आपके लाभ के लिए चीजें सिखाएं। May God bless you. ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिताओं, gracious God, दयालु ईश्वर Lord, प्रभु, we thank Thee for Thy wonderful promise in Isaiah 48:17. हम यशायाह 48:17 में दिए गए अद्भुत वादे के लिए आपका धन्यवाद You करते हैं। want to teach the things for our profit. आप हमारे लाभ के लिए चीजें सिखाना चाहते हैं। O Lord, as Thou hast led the people of Israel in the wilderness, हे प्रभु, जैसे आपने जंगल में इस्राएल के लोगों का नेतृत्व किया है, as we are starting this year, O Lord, Thou are willing to, Lord, lead us this year. वैसे ही जैसे हम इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, हे प्रभु, आप इस वर्ष हमारा नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। O Lord, speak to us. हे प्रभु, हमसे बात करें। O Lord, help us not to take decisions on our own. हे प्रभु, हमें अपने निर्णय स्वयं न लेने में सहायता करें। Help us to consult Thee, O Lord, for everything. हे प्रभु, हमें हर बात के लिए आपसे परामर्श करने में सहायता करें। O Lord, you will guide us, you will guard us. हे प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। Through your word you will speak to us. अपने वचन के जरिए आप हमसे बात Give करेंगे। us hearing ears to hear Thy still small voice. हमें आपकी शांत आवाज सुनने के लिए कान दीजिए। Lord, when you speak unto us, give us the heart to obey. हे प्रभु, जब आप हमसे बात करते हैं तो हमें आज्ञा मानने का दिल दीजिए। Thus we may lead a profitable life. इस प्रकार हम एक लाभदायक जीवन जी सकते हैं। Lead us throughout this day. इस पूरे दिन में हमारा मार्गदर्शन करें। We do pray in the promise making and promise fulfilling name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वादे करने और वादे पूरा करने वाले नाम में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।